what are the topics that we completed in previous class? Internet. Okay, Azure Storage Explorer video missing, right? The practical to synchronize our on-premises machine with Explorer tool, correct? No problem. Actually, after break जो है ना वीडियो वो नहीं थी. But no, वीडियो ही नहीं थी. Um, so I'm going to start from the same like as just synchronizing user from on-premises to Azure Active Directory. Okay. Hmm. 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 Block-based storage where we can store the file folders. Correct. Correct. Hmm. Okay. Using Explorer tool, I think, right? External. It's a tool that you need to install on base machine. Uh, sorry. Can you please repeat again? Uh, Actually, in case of Azure Storage Explorer, we should know about the method to join our on-premises Storage Explorer tool to Azure AD. Because as an admin, our responsibility to share information with the help of information the on-premises user able to connect. Clear? Azure Storage. This is the Azure, not storage, Azure portal. Okay, and in Azure portal, we are able to create multiple storage account. For example, I'm going to create one storage account as we discussed before. The storage account contain four different types of storage services. Two related to the unstructured and two for the structure. I'm talking about the container, right? And then file share. We are able to find to set up our tables, and last one is queues. Is that correct? Four different types of storage we can find over a Azure portal. This is our on-premises machine. N number of client operating system or n number of users are available on on-premises. They want to upload their own data over a Azure portal.
So to open the Azure account, it's mandatory you need to provide the user ID and password, right? You must need to use user ID and password to open our Azure portal to configure services. But think about, if you already created a storage account and you want to use your storage account to store the data from on premises client PC, यहाँ पे अगर क्लाइंट पीसी जो है अपना डेटा ट्राई करते हैं अपने क्लाउड के ऊपर या स्टोरेज पे रखने के लिए, विच इज़ रियली डिफिकल्ट, क्योंकि आई डोंट वांट टू शेयर द क्रेडेंशियल ऑफ माय एज्यूर पोर्टल टू एवरीवन. Got it what I'm saying? So we will use the mediator. I'm talking about the internet. So entire machines are connected with internet, and by using ISP, by using the internet, we are able to upload or download our data from on premises to Azure storage services. Very basic procedure we need to use. Step first, open your on premises machine and download Azure Storage Explorer. Okay, Azure Storage Explorer. Second step, install the same tool that you downloaded. Step 2, install Explorer to on premises, on prem. And step 3, connect to Azure account. So the important point that we need to keep in mind कि कितने मेथड हैं हमारे पास जिसके हम अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन को एज्यूर पोर्टल से या एज्यूर पे जो अकाउंट क्रिएट किया है उससे हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए. इज दैट ओके? Everything is okay. We have already created multiple storage accounts, so n number of storage account already available over Azure portal, uh, like backup storage 1988, demo storage 1988, and rep storage 1988. Three different storage account available over a portal, and I wanted to use these storage account with our on-premises machine. So for this particular task, I'm going to download, very simple step, download Azure Storage Explorer. Okay, you always try to download through Microsoft site. N number of options are available. So I want to install on my Windows machine, so that's why I select the platform Windows. The total capacity of this tool is approximately 127 MB, just 127 MB. And very simple step, you need to install just like a normal, what we can say that, normal software. I accept the agreement, install, and wait for a few more minutes. Done. Once you finish it, it will give you the another page. This is Azure Storage Explorer tool, and our responsibility, we should know about the options which are available in the Explorer tool. As an admin, it's our responsibility. We need to guide them. We need to guide to our client कि आपको किस तरीके से हमारे स्टोरेज एक्सप्लोरर के साथ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी है. ठीक है? एग्जैक्टली, बिकॉज हम उनको अपने राइट्स नहीं देना चाहते. आई डोंट वांट टू शेयर माय पर्सनल मेल आईडी, है ना? तो उस केस में क्या होगा?
ओके ओके, आपने आपने ये डाउनलोड कर रखा है, राइट? ठीक है, तो डू वन थिंग, आई एम शेयरिंग द क्रेडेंशियल, नॉट क्रेडेंशियल, इसका जो की है और जो स्टोरेज अकाउंट नेम है, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू एंड यू कैन ट्राई टू एक्सेस, और वहां से आप अपने सिस्टम से डेटा अपलोड करके चेक करो, वो हमें इस स्टोरेज अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? Okay. Can I make you presenter that you can show your screen? I'll guide you properly. Now you are presenter. Can you please share your screen? नहीं, आप आपका आपने स्क्रीन जो शेयर की है ना, आई एम एबल टू फाइंड, केवल आपकी रिकॉर्डिंग दिखाई पड़ रही है मुझे। आप फुल स्क्रीन शेयर करिए, अनशेयर एंड शेयर फुल स्क्रीन। आप अनशेयर करिए, अनशेयर करके फिर से शेयर करिए। स्टॉप शेयरिंग, देन शेयर इट अगेन। है ना, कैमरे के बगल होगा एक ऑप्शन आइकन छोटा सा। हम्म, फुल स्क्रीन, फुल स्क्रीन, entire screen, sorry. Yes. No, not yet. ऑलरेडी मेक यू प्रेजेंटर। चलो एक बार मैं फिर से ऑथराइज करता हूँ आपको। कैन यू प्लीज ट्राई इट अगेन, ट्राई इट नाउ। नाउ आई कैन सी, या कैन यू प्लीज ओपन द एप्लीकेशन दैट यू डाउनलोडेड। ठीक है, ये अपने पास ऑप्शन है, एंड कैन यू प्लीज क्लिक ऑन द प्लग बटन। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ऊपर क्लिक करिए बीच वाले ऑप्शन पे, सेटिंग के ऊपर, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, सबसे कॉर्नर पे। ओके, नीचे, उसके नीचे, नेक्स्ट, हाँ दिस वन, क्लिक हियर। ठीक है, दिस इज द पैनल। आप देखिए यहाँ पे वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन आर अवेलेबल। इज दैट करेक्ट? सो यू कैन प्रोसीड, डू नॉट प्रोसीड विद सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उसमें अगेन यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, पहला ऑप्शन नहीं टच करना है हमें। आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करिए। हाउ मेनी ऑप्शंस वी आर एबल टू फाइंड? है ना, तो ये तीन मेथड हैं जिसके थ्रू हम अपने अकाउंट को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड विद लास्ट ऑप्शन। ठीक है, सो आई कैन शेयर माई अकाउंट नेम एंड की विद यू। डिस्प्ले नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मेंशन कर दो, नॉट एन इशू, इट्स अप टू यू। ठीक है, कैन यू प्लीज कॉपी द नेम फ्रॉम चैट, दिस इज माई स्टोरेज अकाउंट नेम, और कीज भी मैं शेयर कर रहा हूँ। पोर्टल, यस, एंड दिस इज द की, यू जस्ट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट। नहीं नहीं, आपको बेस पे ही जाना है।
Okay, great. I think you are able to connect it, right? नहीं, आप नहीं, यू कैन कंसीडर योर सेल्फ एज ए यूजर, ठीक है ना? और यहाँ पे हमने जो मेरा सब्सक्रिप्शन है, मीन्स कंपनी का सब्सक्रिप्शन है, कंपनी ने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके रखा है। एंड जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी हमारे यूजर्स हैं, सबको हमने बोल रखा है कि भाई जो भी आपको डेटा अपलोड करना है वो आप अपने एज्योर में स्टोरेज में अपलोड करोगे। आई एम गिविंग यू द एक्सेस ऑफ स्टोरेज अकाउंट, ठीक है? सो कैन यू प्लीज क्रिएट योर वन फोल्डर विद योर नेम, और कोई भी नेम डिसाइड करके एक फोल्डर क्रिएट करो, और उस फोल्डर में एक हाँ फाइल, या राइट, फाइल नोट ब्लॉब क्रिएट कर दो, फाइल शेयर क्रिएट कर दो, कोई भी। तो अब ब्लॉब पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक ऑन द ब्लॉब कंटेनर, क्लिक कंटेनर, क्रिएट कंटेनर, पहला ऑप्शन, टाइप द नेम ऑफ योर कंटेनर, must be unique, do not use any special character kind of. You uploaded any file? हाँ, सिंपल सा कोई सी भी एक्स वाई जी टेक्स्ट फाइल अपलोड कर दो, बिकॉज आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन। और जो आप ये एक्टिविटी आपने मतलब फोल्डर क्रिएट किया है, देन फाइल अपलोड की ना, वो इनडायरेक्टली मेरे स्टोरेज पे आ रहा है। नो 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 नो, ऊपर आप सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करिए, वहां से आपको अपने बेस मशीन से डेटा डाउनलोड करना, अपलोड करना है। या दिस वन इज योर बेस मशीन। नो, जस्ट नीड टू अपलोड, लास्ट में ऑप्शन है अपलोड का। ठीक है, ओके, कैन आई शेयर माई स्क्रीन? ओके, सो यू अपलोडेड द डेटा इन माई स्टोरेज अकाउंट, जो मैंने आपको क्रेडेंशियल शेयर किया, नॉट क्रेडेंशियल, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। हमने आपको एक स्टोरेज अकाउंट दिया था, डेमो स्टोरेज 1988 के नाम से, और आई हैव ऑलरेडी शेयर द कीज विद यू, राइट? सो correct. In the security and networking, we are able to find access key, just copy it and share with the client, मतलब जिसके साथ भी आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। आपने क्या किया, एक कंटेनर बनाया, राइट, विद नेम ऑफ, विद योर नेम, द कंटेनर नेम दैट यू क्रिएटेड, दिस वन आई थिंक। आई एम गोइंग टू ओपन इट, और ये एक आपने txt फाइल अपलोड की जो हॉट एक्सेस्टेयर में है, ब्लॉक ब्लॉब है, और 551 बिट का जो टोटल कैपेसिटी कंजप्शन है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है ना? तो इट मीन्स दैट मीन्स थिंक लाइक एज ए कंसल्टेंट, थिंक लाइक एज ए कंसल्टेंट। कोई क्लाइंट कहता है कि मेरे पास सीसीटीवी कैमरा का डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर महीने मेरे पास जो टोटल डेटा मीन्स जो रिकॉर्डिंग्स का निकलता है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 GB निकलता है, एंड टू परचेज अ हार्डवेयर विच इज़ रियली कॉस्टली। अगर मैं हर महीने 500 GB हार्ड डिस्क परचेज करता हूँ, या अपना खुद का सैन इस्टेब्लिश करता हूँ, विच इज़ रियली कॉस्टली,
और सीसीटीवी के कैमरा का डेटा जो है वो कंसीडर किया जाता है एज ए आर्काइव डेटा। इज दैट करेक्ट? सो आर्काइव डेटा किसको कहते हैं? नहीं नहीं, नॉर्मल आर्काइव डेटा क्या, एक्सेस स्टोर तो बाद में आएगा ना। बट हम ये बोल सकते हैं कि जिसको हम फ्रिक्वेंसी में यूज नहीं करते बट उसको डिलीट भी नहीं कर सकते हम, वो एग्जैक्टली हम उस डेटा को डिलीट भी नहीं कर सकते, हमें बचा के भी रखना है एंड उसे हम मीन्स डेली यूसेज भी नहीं है। तो इस टाइप के डेटा के लिए वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट कि वी हैव ऑप्शन टू चेंज द टीयर। ठीक है, इस तरीके के डेटा को हम आर्काइव के केस में रख लेंगे। सो दिस इज अबाउट व्हाट वी कैन से दैट कॉन्सेप्ट ऑफ एजर स्टोरेज एक्सप्लोरर, जिसमें से आपने अभी एक ऑप्शन देखा एंड वी हैव अ 3 डिफरेंट ऑप्शन। एक ऑप्शन आपने देखा था कि इसमें SAS था, SAS URL, राइट? So the SAS URL also available in the same page in the security and networking. You just need to click on shared access signature. Under the shared access signature, it will give us lots of option जिसमें आप कस्टमाइज करके अपने सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। You don't want to share the entire, you don't want to share the entire services of storage account, blob, फाइल, क्यूज, टेबल, इन चारों को हम नहीं शेयर करना चाहते हैं, हम केवल 2 ऑप्शन शेयर करना चाहते हैं, जस्ट अनचेक। हम केवल उसको अनचेक कर देंगे एंड केवल वही सर्विसेज आपकी सिंक्राइज होगी, वही सर्विसेज आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी जिसको आपने चेक मार्क किया है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ग्रेट। हाँ, परमिशन भी रीड, राइट, डिलीट, लिस्ट, ऐड, ठीक है, क्रिएट, अपडेट एज पर द रिक्वायरमेंट। इवन वी कैन सेट द expiration for access of your, the expiration of access of your स्टोरेज अकाउंट। आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि इतने दिन तक के लिए हम अपने स्टोरेज का एक्सेस देना चाहते हैं एंड आफ्टर दैट आई डोंट वांट टू प्रोवाइड द एक्सेस। ठीक है, वी हैव ऑप्शन टू। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट, ग्रेट। सो एनी अदर क्वेश्चन? हम्म, नहीं, अभी हम लोगों ने फाइल शेयर के बारे में बात नहीं की, आई थिंक, राइट? हमने हम केवल अभी ब्लॉग पे हैं, हम एक एक स्टेप पे को कवर करते हैं। अभी अगर आप ओके बोलते हैं कि आई एम गुड विद ब्लॉग, सारी चीजें हमारी हो गई, तो हम मूव करेंगे अगले पार्ट में ना। चलो मैं आपको एक लिस्ट बताता हूँ कि व्हाट आर द पॉइंट्स दैट वी कवर्ड इन केस ऑफ ब्लॉब स्टोरेज एंड लेट मी नो कि आप इसमें कितना कंफर्टेबल हो इन केस ऑफ स्टोरेज सर्विसेज में, राइट? सो इन आवर स्टोरेज अकाउंट, एजर स्टोरेज अकाउंट में हमने बात की अभी ब्लॉब्स के बारे में, मीन्स कंटेनर के बारे में। अबाउट एज्योर स्टोरेज अकाउंट, इन द एज्योर स्टोरेज अकाउंट जो ऑप्शंस थे वो हमने डिस्कस किए, बट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द containers, right? So under the containers we are able to create a blob, and blob is a type of means you can also say that this is the part of container जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना पर्सनल डेटा, स्टोर आवर ऑन डेटा, जिसमें हम अपना पर्सनल डेटा अपलोड कर सकते हैं। अगले टॉपिक की बात करें तो कंटेनर में ये था, हमने टाइप्स ऑफ ब्लॉब के बारे में डिस्कस किया था। वी टॉक्ड अबाउट द ऑल टाइप्स ऑफ ब्लॉब। हमने एक्सेस टीयर के बारे में बात कर लिया था। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वी कैन से
एक्सेस टेयर का हो गया, ब्लॉब्स का हो गया, और फेल ओवर के बारे में भी बात की थी हमने. आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडंडेंसी, राइट. फेल ओवर के केस में रेडंडेंसी के बारे में हमने डिस्कस किया था. इज दैट ओके? नंबर ऑफ कॉपीज, यस. LRS, GRS, ZRS एंड ZZRS, ये सभी पार्ट हमने डिस्कस किए थे. जो कि डिपेंड करता है कि किस तरीके की सर्विसेज, सॉरी, जो कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का फेल ओवर सेटअप करना चाहते हैं. इज दैट करेक्ट? हाँ जी, जब भी हम स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करते हैं, इट विल प्रोवाइड अस ऑप्शन. चलो, सो इज दैट क्लियर अबाउट दैट? अभी जो हमने डिस्कस किया ये सब क्लियर है? व्हाट इज यूज ऑफ कंटेनर? Correct, correct. So container in the sense you can say that, sorry, blob is a type of storage जहाँ पे हम अपना जो यूसेज, पर्सनल यूसेज वाले डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, उस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम स्टोर करा सकते हैं. इज दैट करेक्ट? और ब्लॉब भी कई पार्ट में हमने कैटेगराइज किए थे. ब्लॉक ब्लॉब हो गया, अपेंड ब्लॉब हो गया, एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट, आई थिंक, पेज ब्लॉब के बारे में भी हमने बात की थी, राइट? राइट. Fine. So can we proceed for the next? If everything is okay, I'm going to show you the steps how we can manage the file share. But उसके पहले हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि फाइल शेयर क्या है, किस तरीके से इसको हम रियल इन्वायरमेंट में यूज करते हैं. इज दैट ओके? ठीक है. नहीं, ठीक है. देखो, अगर हम बात करें इसमें अपने ब्लॉक ब्लॉब की, और जो अदर ब्लॉब्स हैं, अदर ब्लॉब इन द सेंस लाइक एज अ पेज ब्लॉब है और अपेंड ब्लॉब है, वो हम मैनुअली नहीं क्रिएट कर सकते. ठीक है? जैसे ब्लॉब हम क्रिएट करते हैं तो हमेशा आपका ब्लॉक ब्लॉब ही बनेगा. अगर हम यहाँ पे पोर्टल पे चले ना, लेट मी चेक. अगर हम यहाँ पे पोर्टल पे चलते हैं, एज़्योर पोर्टल पे, जब भी हम अपने स्टोरेज को ओपन करते हैं और स्टोरेज में जा कर के कंटेनर्स को ओपन करेंगे, और कंटेनर्स पे जब क्लिक करेंगे क्रिएट करने के लिए, टेस्टिंग के नाम से हम एक बना देते हैं. ठीक है? तो अब ये कंटेनर बन रहा है, वो कौन सा है? नॉर्मल कंटेनर है. और इसमें अगर हम जो कोई भी डेटा ऑन प्रोमाइसेस से अपलोड करते हैं, कोई सा भी डेटा हम अपलोड कर देते हैं, लाइक एक्सप्लोरर ही अपलोड कर देते हैं. हाँ, लोकल मशीन से हम पोर्टल के ऊपर इसको अपलोड कर रहे हैं. हाँ.
बाय डिफॉल्ट ये डेटा आपका ब्लॉक ब्लॉब में जाएगा। पेज ब्लॉब का कोई ऑप्शन नहीं आया है, इज दैट करेक्ट? अपेंड का भी नहीं आया, क्योंकि ये जो अपेंड ब्लॉब है या जो अपना पेज ब्लॉब है ना, विच आर रिलेटेड टू द ऑटोमेटिक, वो वर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से आप इनको यूज कर पाएंगे या कैसे क्रिएट कर पाएंगे। इज दैट ओके? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वर्चुअल मशीन जब हम क्रिएट करेंगे ना, तो वर्चुअल मशीन जब आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन देते हैं आपको हार्ड डिस्क के लिए। दो ऑप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं हार्ड डिस्क के लिए। एक होता है मैनेजेबल हार्ड डिस्क, दूसरा होता है अनमैनेजेबल हार्ड ड्राइव। ठीक है, जब आप अनमैनेजेबल हार्ड डिस्क पे जाते हैं ना, तो उस केस में आपका पेज ब्लॉक पिक्चर में आता है। ऑटोमेटिक पेज ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, और पेज ब्लॉक क्या करता है, आपके सिस्टम की हार्ड डिस्क को कंटेन करने का काम करता है। वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क को कंटेन करने का काम करता है, जिससे इन फ्यूचर अगर आपको वर्चुअल मशीन को कंटिन्यू नहीं रखना है, तो यू कैन डाउनलोड द हार्ड ड्राइव एंड यूज सेम हार्ड डिस्क ऑन ऑन प्रोमाइसेस, और ऑन प्रोमाइसेस पे आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं उसी सेम हार्ड ड्राइव से। क्लियर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने ऑन प्रोमाइसेस की फाइल को भी अपलोड करा सकते हैं। 100% उसमें आएगा, 100% उसमें आएगा। हाँ, सेम वर्चुअल मशीन जब क्रिएट करते हैं ना, तो उसकी पेज फाइल और लॉग्स को वो कंटेन करके रखेगा। जब आप मैनेजेबल वीएम बनाएंगे तो आपको अपेंड ब्लॉब मिलेगा, जब आप अनमैनेजेबल वीएम बनाएंगे तो आपको पेज ब्लॉब मिलेगा, सिंपल। ठीक है ना? हाँ, 100% आप उस पर्टिकुलर वीएम PHDX फाइल को, बेसिकली जो यूज होता है उसको आप ऑन प्रोमाइसेस पे डाउनलोड कर देते हो। ठीक है, ऑन प्रोमाइसेस यानी लोकल पे डाउनलोड कर देते हो, एज्योर के BHDX फाइल को ऑन प्रोमाइसेस पे डाउनलोड कर लेते हो, और डाउनलोड करने के बाद उसी हार्ड डिस्क से आप नई वीएम क्रिएट कर पाओगे। उसी हार्ड डिस्क के एक, नहीं नहीं, पूरा ओएस होगा, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। लॉक की डिटेल से हम ये चेक कर सकते हैं कि वर्चुअल मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आते हैं, तो लॉक के थ्रू हम रीड कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। जैसे अपडेट आते हैं, बहुत सारे अपडेट आते हैं। अपडेट में क्या होता है, कुछ ऐसे अपडेट आते हैं सिक्योरिटी से जिसकी बाद हमारा सिस्टम काम करना बंद कर देता है, राइट? या कुछ ऐसे अपडेट आ गए जिनकी वजह से प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। सो इन दिस सिचुएशन आप लॉग ही की तरफ से हेल्प करेंगे, एंड लॉग विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड ऑल्सो हेल्प यू इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग। नहीं नहीं, जो एक्सपर्ट है ना, हम केवल उसके साथ शेयर करेंगे। जो ऑनर है, जैसे एडमिन है ना, तो एडमिन विल टेक केयर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द फाइल शेयर सर्विस। एज पर द नेम सजेस्ट, द मीनिंग ऑफ फाइल शेयर सर्विस, डू यू हैव आइडिया अबाउट मैप नेटवर्क ड्राइव? क्या होता है मैप नेटवर्क ड्राइव? मीन्स बार बार हमें उसको एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वन टाइम का प्रोसेस होता है। यू जस्ट नीड टू मैप योर ड्राइव विद एनी मशीन, और उसके बाद हम उसमें अपना डेटा अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं, करेक्ट? ग्रेट। एज इट इज ओवर एज्योर पोर्टल, अपने पास एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम अपने एज्योर पोर्टल के फाइल शेयर को ऑन प्रोमाइसेस के साथ या एज्योर की वर्चुअल मशीन के साथ क्या करेंगे, मैप करने का काम करेंगे। क्लियर? So how we can do that? We just need to
create file share. सेम ही है ना स्टोरेज अकाउंट के अंदर, अभी तक हमने कंटेनर पे डिस्कस किया। फाइल शेयर ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड, बट आई एम गोइंग टू डिलीट, ताकि हम बिल्कुल बेस से एक बार डिस्कस कर सकें कि फाइल शेयर काम कैसे करता है। ओके, लॉक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉक है फाइल शेयर तो नहीं 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 नहीं, एज्योर जो है हर एक रिसोर्सेज पे एक एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लॉक का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है कि हमसे कभी ऐसी गलती ना हो कि हमारा जो है रिसोर्स खुद से डिलीट हो जाए। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी से गलती से डिलीट पे क्लिक हो गया तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लॉक हमेशा ऑटोमेटिक एक्टिवेटेड रहता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, एक्चुअली द सेम फाइल शेयर आई यूज टू टेक द बैकअप। इसका बैकएंड में बैकअप की वजह से ना हम अपने इस रिसोर्स को डिलीट नहीं कर पाएंगे। प्रोसीड। कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? हाँ, मैंने प्रेजेंटर बना दिया आपको। न- ठीक है, ठीक है। नहीं, पहले आप स्टोरेज एक्सप्लोरर से ओपन करोगे ताकि आप कमांड उसकी कॉपी कर सको। पहले अपने स्टोरेज अकाउंट को एज्यूर स्टोरेज एक्सप्लोरर टूल से कनेक्टिविटी दो, फिर वहां से आप इसको कमांड के जरिए अपने बेस मशीन में सीएमडी पे कॉपी करोगे। हाँ, इससे कनेक्ट कर, इससे कनेक्ट कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं समझ पा रहे हो, ये तो मेरा शेयर स्टोरेज है ना। आप अपने अकाउंट को कनेक्ट कराओ, अपने स्टोरेज अकाउंट को कनेक्ट कराओ। नहीं नहीं, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद माई स्टोरेज अकाउंट। आप अपना कनेक्ट नहीं कर रहे हैं ना अभी। हाउ वी कैन कनेक्ट? ठीक है। आप स्टोरेज अकाउंट से पूरा अकाउंट कनेक्ट कर लो, बाद में फिर वो यूज करते रहना। करेक्ट।
Mm-hmm. Correct. Correct. No, you need to check it again. Execute the command and try again. हाँ, ड्राइव लेटर के बाद कोलन. स्पेस तो नहीं था. अच्छा अच्छा. हम्म. बेस मशीन पे जाओ. अच्छा, बेस मशीन से तो हो गया. हम्म. डबल क्लिक इसको ओपन कराओ. ब्राउज पे जाओ. यहाँ पे आपका डेटा मिल जाएगा. ये आपने परमानेंट मैप करा दिया आप. करेक्ट करेक्ट करेक्ट.
करेक्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हम्म। नहीं नहीं, उससे तो हम सिर्फ यही ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे ना, जिसके जिसके पास एज्यूर अकाउंट नहीं है ना, तो उसको हम बोलेंगे कि आप अपने एक्सप्लोरर से कनेक्ट करो, हम आपको फाइल शेयर शेयर कर रहे हैं यहाँ पे। वो बंदा केवल इस सीएमडी को कॉपी करेगा एंड पेस्ट कर देगा, सिंपल। नहीं है, परमिशन है ना, जब आप शेयर करते हो, जब आप उसमें असाइन करते हो अपने स्टोरेज अकाउंट को, तो कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, रीड राइट एंड अदर ऑप्शन। तो वो शेयर स्टोरेज ही, वो परमिशन ही है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, बिल्कुल। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है, यहाँ तक के लिए। ओके, सो आज थोड़ा सा एक्चुअली मैं लेट हो गया था ना, इस वजह से हमें अभी वो करना पड़ेगा ड्रॉप अप।